Hello friends, welcome back. Children, today's topic for our discussion is measurement of national income. Friends, many times we come across this word that is called as national income. Sometimes you also hear it at another level that's called as GDP or gross domestic product or macroeconomic scenario of a country. Children, many times we keep on hearing like India का GDP का growth rate क्या रहेगा, या फिर नेशनल इनकम ग्रो हुआ है फिर रिड्यूस हुआ है. अच्छा, लॉकडाउन के बाद में जीडीपी के ऊपर क्या इफेक्ट्स रहेंगे. देन हाफ द टाइम चिल्ड्रन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि लाइक सर व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम, और सर व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी. सो चिल्ड्रन, दिस टॉपिक विल गिव यू an overview, or we are going in depth to understand children what exactly is the meaning of national income. Acha, what are its features, what are the different concepts of national income, acha, how national income is measured, and then there's another concept children that's come up nowadays that's called as green GDP. It's also called as green gross domestic product, giving a lot of care to the environment and the nature while calculating a country's GDP. So children, without wasting time, let's begin. First of all, let's understand what exactly is the meaning of national income. Then I'll explain you what are the different methods. Along with that, features की बात करेंगे हम लोग आज. Children, talking about the national income, there is a very simple way of explaining what is national income. I tell you like this. चलो, एक देश के अंदर एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए थे. अच्छा, वो सबको जब हम लोग मनी वैल्यू में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस, तो उसके बाद में जो भी अमाउंट हम लोग को दिखेगा उस अमाउंट को हम लोग नाम देते हैं नेशनल इनकम. सो हाउ डू यू डिफाइन इट चिल्ड्रन टेक्निकली? So national income is children nothing but the total money value of all the final goods and services which are produced in an economy during a given year. तो वापिस से वही, in a given year in an economy how many goods were produced and how many services were rendered. अच्छा, and we are going to convert that into the market value children. Market value is like multiplied by the market price. So that's the normal meaning of national income. Acha, then we come to some of the definitions children. We can speak about that. The first definition is given here by A.C. Pigou, that is Arthur Cecil Pigou. Now, how does he define children? He says that national income is that part of the objective income of the community. It's the income of the community. Objective income children would be the income that is generated through goods and services, okay, not the transfer incomes that we have. Acha, but children, it is that part of the objective income of the community which includes, of course, income which is derived from abroad, which can be measured in terms of money. So children, हमारे देश के कम्युनिटी का ऑब्जेक्टिव इनकम, उसमें हम लोग क्या इंक्लूड करते हैं कि फॉरेन कंट्री से हमको मिला हुआ पैसा जब हम लोग उसमें ऐड करेंगे तो जो अमाउंट आता है हमारे सामने वो रहेगा नेशनल इनकम. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली चिल्ड्रन, ही हैज ऑलरेडी नोटेड हियर दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच एक्चुअली आर सोल्ड फॉर मनी और मनीज वर्थ. चिल्ड्रन, इट मीन्स any particular commodity or a service which is not sold for money, would actually not have any place in national income. क्योंकि यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में ही बोला हुआ है क्या कि it is the value of goods and services. Now when do you get the value of goods and services children? When those goods and services are exchanged for money. अच्छा, why do they say this? Some think children they do not command a price, जैसे कि taking care of your parents, a mother cooking for the children, या फिर a mother taking care of a child when he is sick. आपको पता है ये सब सर्विसेज के लिए कोई पैसा नहीं आता, तो इसका मतलब ये भी होता है बच्चों कि इसको नेशनल इनकम में कोई जगह नहीं होती है. क्लियर? So once again children, national income is that part of the objective income of the community which almost includes the income which is derived from abroad, but it should be measured in terms of money, and it only includes those goods and services which are actually sold for money. Then there's one more definition children here given by Simon Kuznets. What he defines is this:
It is a net output of commodities and services flowing during the year from the country's productive system to the hands of ultimate consumers. तो एक इकोनॉमी में एक साल के अंदर कितने कमोडिटीज और कितने सर्विसेज ओके प्रोडक्टिव सिस्टम से अल्टीमेट कंज्यूमर्स के पास फ्लो हुए. वापिस आई एम रिपीटिंग. नेट आउटपुट किसका? कमोडिटीज और सर्विसेज. टाइम क्या रहेगा? एक ईयर. प्लेस क्या होता है? कंट्री. अच्छा, कहां से कहां पे फ्लो करेगा? प्रोडक्टिव सिस्टम से अल्टीमेट कंज्यूमर्स के पास, मतलब बिजनेसेस से हाउस होल्ड्स की तरफ जो फ्लो होता है उसको नेशनल इनकम बोलते हैं. ओके, देन चिल्ड्रन वी कम अक्रॉस व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम. सो एज फार एज मेजरमेंट इज कंसर्न, यू नीड टू बी क्वाइट क्लियर चिल्ड्रन कि एक ही चीज को मेजर करने के अलग अलग तरीके होते हैं. अभी हमने बोला कि लाइक व्हाट इज नेशनल इनकम, तो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, और द टोटल इनकम रिसीव्ड एंड द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द इकोनॉमी. ठीक है, इसका मतलब एक बात क्लियर है बच्चों लोग कि हमारे देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए थे, हमारे देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए थे, वो सबका जो वैल्यू होता है इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो हम लोग पेमेंट्स देते हैं ना बच्चों लोग, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. अच्छा, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये क्या है बच्चों लोग? इनकम होता है. एंड टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये दोनों भी जनरली बच्चों लोग हमेशा सेम ही रहेंगे. सी चिल्ड्रन, मैंने कितना कमाया और मेरे पास जो प्रॉपर्टी है बच्चों लोग, उसका वैल्यू हमेशा एक ही होता है. जब हम लोग बोलते हैं कि लाइक मुकेश अंबानी के पास, अगर मैं बोलता हूँ 55 बिलियन यूएस डॉलर्स का वेल्थ है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों लोग? उसके पास ये सब रोकड़ा थोड़े ना होता है, नहीं. ही विल बी हैविंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज होते हैं बच्चों लोग, उसके व्हीकल्स रहेंगे, उसका हाउस प्रॉपर्टी रहेगा. अच्छा, ये सबको मिला के वो अमाउंट बनता है. अच्छा, और एक बात होती है बच्चों लोग, अगर आपको किसी का इनकम जानना है और आपको उसका इनकम पता नहीं है, तो आप ये भी तो कर सकते हो, आप उसका एक्सपेंडिचर देख लो. अगर मैंने बच्चों 1 लाख खर्च किए, तो इसका मतलब ये भी तो होता है कि मैंने 1 लाख कमाए रहेंगे. अभी आप बोले सर किसी और का लिया रहेगा, तो हाँ, तो बोरोइंग्स में दिखा सकते हैं हम लोग. सो योर इनकम विल बी इक्वल टू एक्सपेंडिचर and all these are going to match with all the goods and services that we have with you. आपके पास जो भी प्रॉपर्टीज है, आपका घर है, आपका जो व्हीकल्स रहेगा, गोल्ड है, इन्वेस्टमेंट्स है, सबको मिलाओगे तो आपका इनकम भी तो पता चलता है. तो दैट इज वाई चिल्ड्रन वी हैव टर्म्ड अप हियर दैट वी अराइव एट व्हाट इज नोन एज अ ट्रिपल आइडेंटिटी. किसकी तरफ आए हम लोग? ट्रिपल आइडेंटिटी. व्हाट इज दैट? कि हमारे देश का नेशनल इनकम विल बी इक्वल टू द नेशनल प्रोडक्ट, मतलब हमारे देश का टोटल प्रोडक्शन, and that is going to be equal to the national expenditure. बच्चों लोग, एक आध कंपनी ने 10 लाख कार प्रोड्यूस किए, तो 10 लाख कार ये क्या होता है बच्चों लोग? दिस इज नेशनल प्रोडक्ट. सपोज दे आर कंपनीज प्रोडक्ट. अच्छा, सपोज फॉर एग्जांपल कि लाइक इसी के वैल्यू को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे प्राइस से, तो नेशनल इनकम मिलता है. और बच्चों लोग जब जाके परचेस करेंगे कार्स, तो कार के प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेशनल एक्सपेंडिचर भी मिला, मतलब नेशनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल प्रोडक्ट एंड दैट इज इक्वल टू नेशनल एक्सपेंडिचर. ठीक है. अच्छा, तो कौन कौन सी 3 चीजें आती है देखो ट्रिपल आइडेंटिटी में? नंबर 1, इट इज द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर. मतलब हमारे देश में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए थे, वो सबका टोटल मनी वैल्यू. ये कौन सा मेथड हुआ बच्चों लोग? इट्स द नेशनल प्रोडक्ट. अच्छा, दूसरी बात, इट इज द सम ऑफ ऑल इनकम्स अक्रूइंग टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ ईयर. हमारे देश में बच्चों लोग जो भी लोग पैसा कमाते हैं वो किसके जरिए आता रहेगा? या तो वेजेस, या तो रेंट, या तो इंटरेस्ट, या तो फिर प्रॉफिट. तो आप एक काम करो, चारों को ऐड कर दो, जो मिलेगा टोटल वो होगा हमारा नेशनल इनकम. या फिर देयर इज अ थर्ड मेथड चिल्ड्रन व्हिच सेज दैट इट इज द सम ऑफ कंज्यूमर एक्सपेंडिचर. मतलब लोगों ने कितना पैसा खर्च किया, लोगों ने कितना पैसा सेव करके इन्वेस्ट किया, और हमारे देश में बच्चों गवर्नमेंट ने कितना पैसा खर्च किया गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर. ये बच्चों लोग जो अभी हाईलाइटेड आपको दिख रहा है ब्लू में, ये क्या है? एक देश में किया हुआ टोटल खर्चा. वापिस एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं.
लोग खर्च करते हैं उसको क्या बोलोगे आप? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। अच्छा, हम लोग जो खर्च नहीं करते वो क्या होता है? सेविंग। सेविंग्स बाद में क्या बनते हैं? इन्वेस्टमेंट। ये प्राइवेट लोगों का खर्च हुआ, और ऊपर से गवर्नमेंट भी बच्चे लोग इन्वेस्ट करती है, किस पे? गुड्स एंड सर्विसेज पे। तो सबको ऐड कर दो तो खर्चा। तो पहला मेथड था आउटपुट मेथड, दूसरा होता है इनकम मेथड, और तीसरा होता है बच्चे लोग एक्सपेंडिचर मेथड। So that's what I was referring to, children. This is called as a triple identity. क्या बोलते हैं इसको? ट्रिपल आइडेंटिटी। सो ट्रिपल आइडेंटिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने आपको बताया यहाँ पे। यू कैन जस्ट हैव सी दिस हाईलाइटेड वर्ड, national income is equal to national product and is equal to national expenditure. And to tell you the children, the truth is that generally the amounts for all the calculations, तीनों मेथड से आप कैलकुलेट करो, आपका नेशनल इनकम का फिगर सेम आएगा। क्लियर? ओके। Then children, here today we are going to understand what exactly are the features of national income. It's a very simple concept, children. You can just have a look. First of all, national income में we have given it like this. We call it as a flow concept. क्या बुलाते हैं हम लोग? Flow concept. Why do we call it as a flow concept? दो concepts होते हैं children. एक होता है static और एक होता है flow. जो पैसा बच्चे लोग मेरे जेब में है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक। मैंने जाके उसको शॉपकीपर को देके कुछ परचेस किया और फिर वो फ्लो करना चालू करेगा। ठीक है? अच्छा, आपके पास कुछ पैसा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए स्टैटिक कॉन्सेप्ट। आपने जाके उससे कुछ परचेस किया और फिर वो क्या होना चालू होता है? फ्लो होना चालू होता है। ठीक है? अच्छा, अभी आप बोलोगे सर व्हाई नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट? इट्स वेरी सिंपल चिल्ड्रन। डेफिनेशन को याद करो। क्या बोलते हैं? कि इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ऐसे नहीं बोला कि एक दिन कितना प्रोड्यूस किया, नहीं, एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए थे। अभी वो गुड्स एंड सर्विसेज एक जगह पे तो रहेंगे नहीं बच्चे लोग, बाय सेल होते रहता है, दे गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सो मनी विल ऑल्सो कीप ऑन चेंजिंग हैंड्स। एंड चिल्ड्रन सी, मनी डज नॉट सिट एट वन प्लेस, मनी विल फ्लाई ऑन द विंग्स। एक आध बर्ड है, उसकी विंग्स के ऊपर बैठ के वो पूरे इकोनॉमी में इधर उधर घूमता है पैसा, इसलिए नेशनल इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। चिल्ड्रन, द सेकेंड फीचर विच सेज दैट नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। क्या बोला है? नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। अच्छा, ज्यादातर गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं बच्चों लोग, वो फाइनली मार्केट में जाने से पहले बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेस को पास करते हैं। अभी ध्यान रखना है आपको कि नेशनल इनकम काउंट करते वक्त चिल्ड्रन विल ओनली कंसीडर द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट गुड्स को यहां पे कोई जगह नहीं होगी। इंटरमीडिएट गुड्स आर लाइक यू नो चिल्ड्रन, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं क्लॉथ, तो हमने वहां पे यान या फिर धागा यूज किया था, कॉटन यूज किया था, तो हम लोग कॉटन और धागा वो सबका वैल्यू नहीं लेंगे, हम लोग डायरेक्टली क्लॉथ का वैल्यू ले सकते हैं। लेकिन क्लॉथ को भी अगर हम लोग फाइनल में शर्ट्स या फिर कुछ गारमेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, तो क्लॉथ विल ऑल्सो बिकम लाइक अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अच्छा, अभी बच्चे लोग आप अलग से यान, अलग से कॉटन का वैल्यू इंक्लूड करोगे तो आपको पता है प्रॉब्लम क्या होगा? डबल काउंटिंग होगा बच्चों। आपने कॉटन का वैल्यू लिया, फिर आप यान का वैल्यू ले, तो यान के अंदर कॉटन इंक्लूडेड है, फिर आप क्लॉथ का वैल्यू लोगे, उसके अंदर भी दोनों इंक्लूडेड होते हैं, फिर आप शर्ट का वैल्यू लोगे, उसके अंदर तीनों इंक्लूडेड होते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन व्हीट, फ्लावर और बाद में बनता है ब्रेड, तो हम लोग सिर्फ किसका वैल्यू कंसिडर करेंगे? ब्रेड का, क्योंकि अगर तुमने व्हीट और फ्लावर को कंसिडर किया तो ब्रेड की वैल्यू में सबका डबल काउंटिंग होता है। और हमारे देश का नेशनल इनकम चिल्ड्रन ओवर एस्टिमेट होगा, इसीलिए चिल्ड्रन वी डू नॉट कंसिडर intermediate products or raw material, we will only consider final goods and services. Clear? Yes. Point number 3 children क्या लिखा है देखो, it is a macroeconomic concept. क्या बोला है? It is a macroeconomic concept. Why? एक चीज है बच्चों, डेफिनेशन को देख लो फिर से। इनकम ऑफ द इकोनॉमी, क्या बोला है? इनकम ऑफ द इकोनॉमी एंड नॉट अ इंडिविजुअल इनकम। डेफिनेशन में लिखा हुआ है बच्चों लोग दैट नेशनल इनकम इज अ मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ इकोनॉमी। देश में कितना प्रोडक्शन होता है बच्चों लोग, उसको हम लोग नेशनल इनकम बुलाते हैं, ना कि इंडिविजुअल प्रोडक्शन। देन मॉनेटरी मेजर, अगेन डेफिनेशन की तरफ जाओगे आप। अच्छा, व्हाट इज नेशनल इनकम? सो नेशनल इनकम इज अ मॉनेटरी मेजर, क्योंकि वो ऐसे भी हमने डेफिनेशन में बोला था ना, इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज
प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर। मतलब है चलो हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ है मल्टीप्लाई बाय उसका मनी वैल्यू, यानी क्या, उसका कीमत, उसका प्राइस। तो चिल्ड्रन इट्स मॉनेटरी मेजर, वी डू नॉट मेजर द क्वांटिटीज। हम लोग ये नहीं देखते कि चलो हमारे देश में कितने लाख कार्स प्रोड्यूस हुए थे, कितना टन राइस प्रोड्यूस किया गया था, कितना लीटर्स का मिल्क प्रोड्यूस हुआ था, नहीं, हम लोग ये देखेंगे कि वो सबका पैसे में वैल्यू कितना होता है। क्लियर? अच्छा, देन चिल्ड्रन नेशनल इनकम में हम लोग नेट एक्सपोर्ट्स को ऐड करते हैं। मतलब व्हाट आर नेट एक्सपोर्ट चिल्ड्रन? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। हमारे देश का जीडीपी ऑलरेडी 1 लाख करोड़ है सपोज, और उसमें अज्यूम करना एक 10,000 करोड़ का एक्सपोर्ट्स हुआ था और 5,000 करोड़ का इंपोर्ट्स हुआ था, तो नेट एक्सपोर्ट्स कितना होता है? प्रॉफिट 5,000 करोड़ का। तो 1 लाख करोड़ प्लस ये 5,000 करोड़, तो 1,05,000 करोड़ का हमारा नेशनल इनकम होगा। लेकिन बाय एनी चांसेस चिल्ड्रन, अगर इंपोर्ट्स 10,000 करोड़ का है, एक्सपोर्ट्स 5,000 करोड़ का है, तो हमारा 1 लाख करोड़ में से 5 लाख करोड़ माइनस होगा, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट्स नेगेटिव में आ रहा है। Indirectly children, whatever income is generated from abroad through exports will be either added to the national income or it will be subtracted. And lastly children, it's a measure of economic progress. क्या बोला है? National income is a measure of economic progress. बच्चों, एक आध कंट्री ने किस तरीके से परफॉर्म किया, अगर आप सही में जानना चाहते हो तो वी कैन हैव अ लुक एट द नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री। अगर आपको दिखता है कि नेशनल इनकम का ग्रोथ हुआ है, अच्छा, देन वी कैन अंडरस्टैंड कि इकोनॉमी का परफॉर्मेंस अच्छा है, इकोनॉमी ने प्रोग्रेस किया है। ठीक है, ध्यान रखना है, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेवलपमेंट की बात अगर हम लोग अलग से रखेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ चिल्ड्रन जनरली टॉक्स अबाउट इंक्रीज इन नेशनल इनकम। जब हमने 11th में पढ़ा था कि लाइक व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वहां पे भी लिखा हुआ था कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज नथिंग बट इट इज अ क्वांटिटेटिव राइज इन द नेशनल इनकम। मतलब देखो, पूरे देश में घुस के हम लोग ये नहीं देख सकते कि कितना डेवलपमेंट हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेशनल इनकम को देखो, अगर नेशनल इनकम बढ़ गया लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, तो हम लोग बोलेंगे कि कंट्री ने इकोनॉमिक ग्रोथ किया हुआ है। द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इन अ चैप्टर, और द क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम एनालिसिस। चिल्ड्रन, नेशनल इनकम एज आई टोल्ड यू इज द total money value of all the final goods and services which are produced in our country ड्यूरिंग 1 अकाउंटिंग ईयर। एक साल में आपके देश के अंदर कितने गुड्स प्रोड्यूस किए गए थे और कितने सर्विसेज रेंडर किए गए थे, ये सबका जो मनी वैल्यू होता है उसको हम लोग नेशनल इनकम करके बुलाते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि लाइक नेशनल इनकम एनालिसिस विच इज अ बिग ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स वी कैन से, व्हाट एग्जैक्टली इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम एनालिसिस? Do we just calculate the national income for the sake of calculation, or is it very useful for macroeconomic policy making of any particular country? So children, national income would actually have a lot of importance in the macroeconomic scenario of any particular economy. तो आज हम लोग बात करने वाले कि ये नेशनल इनकम का जो एनालिसिस होता है उसका एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंस क्या होता है, उसका यूज क्या होता है। ठीक है, तो चिल्ड्रन, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन देयर आर सम 8 पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड। द फर्स्ट पॉइंट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द मेजर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ कंट्रीज। चिल्ड्रन, व्हाट डज दिस पॉइंट मीन? दिस मीन्स फॉर एनी कंट्री to assess or to evaluate कि what is their economic performance, what do we do? Children, we look at the national income of these countries. 2-3 देश है चलो, अभी आप उनके नेशनल इनकम को देखोगे तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि उनका लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या है। सी चिल्ड्रन, अगर आप बाकी कोई भी मेथड लोगे तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस क्या है, एक्सेप्ट द नेशनल आउटपुट। 2-3 लोग हैं बच्चों लोग इंडिविजुअल्स, तो उनके पास जो वेल्थ होता है, उन्होंने इस साल में जो पैसा कमाया उससे उनका परफॉर्मेंस पता चलता है। वैसे बच्चों एक देश ने एक साल में कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया हुआ है, वो सबका मनी वैल्यू जो है उससे हम लोग को इंडिकेटर मिलता है बच्चों लोग कि कंट्री का परफॉर्मेंस क्या है। और इन फैक्ट आई वुड से चिल्ड्रन, नेशनल इनकम और द नेशनल आउटपुट और द जीडीपी, it's like a standard performance indicator. And in fact children, if you got a list of countries, अगर आपके पास बहुत सारे कंट्रीज का एक लिस्ट है
तो आप कंट्रीज को रैंकिंग दे सकते हो बच्चों लोग, कौन से बेस पे, उनके नेशनल इनकम। मतलब जिस कंट्री का जीडीपी सबसे ज्यादा रहेगा यू विल प्लेस इट एट द टॉप, उनके बाद में बच्चों लोग सेकेंड हाईएस्ट जीडीपी वाला, थर्ड हाईएस्ट। तो बच्चों लोग वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज को जीडीपी के बेस पे रैंकिंग दिया जाता है, ठीक है। सो दैट्स द फर्स्ट एग्जांपल चिल्ड्रन व्हेन वी सॉ कि लाइक नेशनल इनकम के जरिए हम लोग को पता चलेगा कि कंट्री का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। सेकेंडली चिल्ड्रन, we can compare the standard of living of different people or different countries. Acha, now the question arises children like what exactly is the standard of living? Standard of living children could be exactly how the people in a country are able to satisfy their basic needs, food, clothing, shelter, health, education. अच्छा, they could be like there are certain other things कि like एक देश में बच्चे लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है क्या ज्यादा है, at the same time children literacy rate, okay, infant mortality, बच्चों का डेथ कितना होता है, ये सब चीजों को देख के हम लोग को पता चलता है बच्चों कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बच्चों आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑब्वियसली आपके इनकम के ऊपर। आपके पापा कमाते हैं बच्चों लोग, आपको थोड़ा कुछ पॉकेट मनी मिलता है, तो यू माइट नॉट बी एबल टू एंजॉय दैट मच गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। But just imagine children कि like you started going out for a job, okay, और जॉब पे जाते हो बच्चों लोग, यू आर गेटिंग अ सैलरी लाइक SY/BCom में पढ़ाई करते करते 25,000 रुपीज का अगर आपको सैलरी मिल रहा है, तो चिल्ड्रन यू विल बी स्पेंडिंग दैट मनी ऑन योर सेल्फ, विल बाय बेटर क्लोथ्स, यू विल हैव द लाइक बेटर फूड हैबिट्स दैट वी हैव, ओके, ऑटोमोबाइल वगैरह आप परचेस कर सकते हो, द लेटेस्ट मोबाइल्स दैट वी कैन हैव चिल्ड्रन, ओके। तो ये क्या था आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन आपका एक आध दोस्त है बच्चों लोग, वो जॉब पे जाता है लेकिन ही इज अर्निंग ओनली 10,000 रुपीज, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको मैच नहीं कर पाएगा, राइट। वैसे बच्चों लोग अलग अलग कंट्रीज का नेशनल इनकम जो होता है वो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और कभी लोअर स्टैंडर्ड्स में सुना था बच्चों लोग आपने कि हम लोग हमारे देश का टोटल इनकम लेते हैं पहले और बाद में टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर लेते हैं, टोटल पॉपुलेशन से is like the total national income divided by total population। तो आंसर क्या आता है याद है किसी को? Yes, many of you know that it's called a per capita income. It's nothing children but average income per person। अच्छा, per capita income बच्चों लोग ये इंडिकेट करता है कि हमारे देश का पूरा जो इनकम है वो लोगों के बीच में किस तरीके से डिवाइड हुआ है। अच्छा, इससे हम लोग को यह भी पता चलता है कि अपने देश में इज देयर इनकम इक्वालिटी या फिर इनकम इनइक्वालिटी। और बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिया का पर कैपिटा इनकम आपने कैलकुलेट किया, अमेरिका का पर कैपिटा इनकम आपने कैलकुलेट किया। अच्छा, फिर आपको पता चलेगा कि दोनों देशों के बीच में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कितना डिफरेंस है। क्या अमेरिका का या फिर यूनाइटेड स्टेट्स का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आएगा इट विल बी वेरी हाई एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इन इंडिया। हम लोग हर एक देश में जाके उनका एक्चुअल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं देख सकते बच्चों लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ नंबर्स है ये आपको इंडिकेट करेंगे कि उस देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है। अच्छा, तो कहने से लाइक दिस चिल्ड्रन, एक देश का पर कैपिटा इनकम अगर ज्यादा है तो हम लोग बोलेंगे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है। इफ देयर इज एनी कंट्री चिल्ड्रन विद अ वेरी लो पर कैपिटा इनकम देन वी विल कंक्लूड कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो रहेगा। क्लियर? और इसके जरिए बच्चों हम लोग दो अलग अलग देशों के बीच में जो लोग रहते हैं उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को कंपेयर भी कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, देन चिल्ड्रन वी कम टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 3 व्हिच इज टॉकिंग अबाउट द सेक्टोरल डिस्ट्रीब्यूशन। Children, what is sectoral distribution? Very simple. In every economy, children, the economic activities are divided into 3 different types or 3 different sectors. जो आपने already पढ़े कौन से? We got a primary sector, secondary sector, and tertiary sector. Okay, namely, what are the children? Primary, secondary, and tertiary sector. अच्छा, now you know that children. It could be like in a family we got a father, then we got son and mother. अच्छा, ये तीनों लोग कुछ पैसा कमा के लाते हैं, तो फैमिली का इनकम कितना बनेगा? तीनों का इनकम ऐड कर दो, तीनों ने जितना कंट्रीब्यूट किया वो। मम्मी 40,000 कमाती है, डैडी को 50,000 का सैलरी, बेटा अभी एक पार्ट टाइम जॉब करे वो एक 10,000 कमाता है। सो वी से कि चिल्ड्रन फैमिलीज इनकम इज हाउ मच? 1 लाख।
इन अ सिमिलर वे चिल्ड्रन, हमारे देश में भी ऐसे कुछ 3 अलग अलग सेक्टर्स है। प्राइमरी यानी क्या, एग्रीकल्चर, देन गॉट सेकेंडरी विच इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, उसके बाद में आता है चलो टर्शरी जिसमें सर्विसेज आते हैं। तो इंडिया में जितना भी आउटपुट आता है, इंडिया का जितना भी नेशनल इनकम, ये ऑब्वियसली ये 3 अलग अलग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे कि इंडिया में एग्रीकल्चर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, इंडस्ट्रीज ने कितना कंट्रीब्यूट किया और सर्विसेज ने कितना कंट्रीब्यूट किया, टोटल इट एंड यू गेट व्हाट इज कॉल्ड एज नेशनल इनकम। तो बच्चे लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हो, आपको ये पता चलेगा कि इंडिया के जीडीपी में, इंडिया के नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, इंडस्ट्रीज ने कितना कंट्रीब्यूट किया और सर्विसेज ने कितना कंट्रीब्यूट किया। एज यू नो चिल्ड्रन, many years back we used to study in economics that India is an agricultural country. Agriculture is the backbone of the Indian economy. But presently the things have changed, children. Presently India couldn't be called as an agricultural country. We are more oriented towards tertiary sector. We are a service oriented economy. ठीक है? अच्छा, तो over the years children agriculture का contribution change होते जा रहा है। अच्छा, इससे हमको ये भी पता चलता है कि अपने देश में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या रहेगा। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है बच्चों, कि एग्रीकल्चर में कितने लोगों को ऑक्यूपेशन मिलता है, इंडस्ट्रीज में कितने लोग काम करते हैं और सर्विस सेक्टर कितने लोगों को ऑक्यूपेशन दे पा रहा है। एट द सेम टाइम चिल्ड्रन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, देन प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट और लोगों का कंजम्पशन पैटर्न, ये बहुत सारी चीजें आपको नेशनल इनकम के जरिए पता चलेगी। यस, then children point number 4 here is talking about the measurement of economic welfare. See children, एक देश के अंदर जब लोगों को वेलफेयर मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, वो कैसे इंडिकेट होता है बच्चों लोग। सो वी कैन अंडरस्टैंड इट थ्रू द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। नेशनल इनकम का जो चेंजेस होते रहते हैं बच्चों लोग, दैट कैन एक्चुअली इंडिकेट। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है बच्चों लोग, देखो एक देश में जैसे कि अभी फिलहाल अगर आप सिचुएशन देखोगे तो इंडिया मैप वाइज हम लोग इतने लकी है कि अपने आजू बाजू में से 15 लोग मिले हम लोगों को। अभी फिलहाल अगर आप देखोगे तो एवरी नाउ एंड देन वी हैव गॉट टेंशन दैट इज ब्रूइंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इट इज लाइक इंडिया एंड चाइना। तो व्हाट द कंट्री विल डू चिल्ड्रन, वी हैव टू पुट मोर एंड मोर मनी टुवर्ड्स आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, जिसको हम लोग कॉमन में क्या बुलाते हैं, डिफेंस। राफेल का डील होता है बच्चों लोग, बहुत महंगे महंगे सबमरीन्स, फाइटर प्लेन्स, ये सब आर्मी के इक्विपमेंट खरीदने के लिए बहुत सारा पैसा जाता है। लेकिन फिर ये भी बात पता है आपको क्या, कि कोई भी देश बच्चों लोग जो डिफेंस के ऊपर ज्यादा पैसा डालेगा, उनके देश के अंदर एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीजों के ऊपर इफेक्ट आने वाला है। दैट मीन्स सी चिल्ड्रन, इफ आई हैव गॉट लिमिटेड मनी, if I put more money on the defense, so automatically I have to reduce the expenditure on education and health services. So children, what will it have, positive or negative effect on the economic welfare? Obviously it is going to have some negative effect on economic welfare. At the same time children, अगर आपने डिफेंस के ऊपर कम खर्चा किया रहता था, बहुत सारे देश है जिनके नेबर्स बहुत अच्छे हैं, तो उनको ये सब डिफेंस, आर्मी, फाइटिंग, इसके ऊपर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना ज्यादा पैसा कहां पे डाइवर्ट कर लेते हैं, एजुकेशन की तरफ, हेल्थ की तरफ, तो लोगों को वेलफेयर मिलता है। ठीक है, तो नेशनल इनकम से आपको पता चलेगा, इफ मोर मनी इज बीइंग स्पेंट टुवर्ड्स डिफेंस, दैट मींस देयर इज लैक ऑफ वेलफेयर इन आवर इकोनॉमी। क्लियर? यस। देन चिल्ड्रन, पॉइंट नंबर 5, इट्स टॉकिंग अबाउट द नेशनल और द चेंजेस इन प्राइस लेवल. Changes in price level are basically like, there are two trends that are followed in an economy. Children, either we come across inflationary trends or deflationary trends. Inflation is like, prosperity, जिसके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, where like, continuous rise in the prices. Deflation is children, recession. See children, फ्यूचर में इन्फ्लेशन आएगा क्या नहीं आएगा, फ्यूचर में डिफ्लेशन आ सकता है क्या, ये ट्रेंड्स बच्चों हम लोग नेशनल इनकम के जरिए अभी पता चल सकता है. See children, what is national income? It is the money value of all the goods and services produced in a country during 1 year. Right? अच्छा, लास्ट ईयर हमारे देश में चलो जितना प्रोडक्शन हुआ था और नेक्स्ट ईयर में जितना प्रोडक्शन हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर का जीडीपी ज्यादा दिखने का 2 रीजंस हो सकता है. एक, या तो तुम्हारे देश में प्रोडक्शन बढ़ा है, इसकी वजह से आपका जीडीपी बढ़ गया. लेकिन आपको ये भी पता होगा बच्चों क्या,
कि हमने लास्ट ईयर की जितना ही प्रोडक्शन किया है, बस इस साल महंगाई आ गई और हमने हायर प्राइसेस से मल्टीप्लाई किया है ऐसे प्रोडक्ट्स को, तभी तो आपको हायर जीडीपी दिखेगा। तो नेशनल इनकम पर चलो दो अलग अलग मेथड्स में कैलकुलेट किया जाता है, एक करंट प्राइसेस और दूसरा होता है चलो कांस्टेंट प्राइसेस। करंट प्राइस मतलब क्या होता है चलो, तुमने इस साल कितना प्रोडक्शन किया मल्टीप्लाई बाय इस साल के प्राइसेस। मतलब सिंपल फॉर एग्जांपल के लाइक इफ यू गेट इट लाइक दिस, ऑनियंस का प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय ऑनियन का प्राइसेस इन 2020। लेकिन करंट प्राइसेस हाई हो सकते हैं, लो हो सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बेस ईयर सिलेक्ट करते हैं। बेस ईयर वो कोई भी हो सकता है, 2012-13 जहां पे एवरेज प्राइसेस थे। तो तुमको क्या करना है, इस साल का प्रोडक्शन ले लो 2020 का, लेकिन मल्टीप्लाइड विद द प्राइसेस इन द बेस ईयर। इससे जो महंगाई का इफेक्ट होता है ना बच्चों लोग, वो निकल जाता है। अच्छा, एंड वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट, अभी देखो जीडीपी एट करंट प्राइस ज्यादा दिख रहा है और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस कम दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज अ चेंज इन द प्राइस लेवल, महंगाई आ गया तुम्हारे देश में। अच्छा, कांस्टेंट प्राइस पे चलो जीडीपी ज्यादा दिख रहा है और करंट प्राइस पे कम दिख रहा है, तो उसको डिफ्लेशन करके बुला सकते हैं हम लोग। यस, देन वी कम अक्रॉस द नेक्स्ट पॉइंट चिल्ड्रन, दैट्स द बिजनेस फोरकास्ट। फोरकास्ट का मतलब आपको पता है चिल्ड्रन, इट्स लाइक वी आर एस्टिमेटिंग द फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या होगा उसका अंदाजा जब हम लोग एडवांस में लगाते हैं तो उसको हम लोग एस्टिमेट्स और फोरकास्ट बुलाते हैं। ठीक है बच्चों लोग, बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं जो बिजनेस फोरकास्ट करने के लिए नेशनल इनकम को यूज करते हैं। जैसे कि चिल्ड्रन, देयर आर लॉट्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज व्हिच आर लुकिंग टू लॉन्च द बिजनेसेस इन इंडिया। बच्चों लोग 1980s में या फिर 1990s में आप आईफोन नहीं देख सकते थे इंडिया में। आईफोन क्या, तभी तो फोन भी नहीं दिखता था, मतलब लाइक इट वाज अ रेयर प्रिविलेज टू हैव अ फोन। एक टाइम आपको मैंने बताया रहेगा कि 1975 के पास आसपास तो ऐसा टाइम था कि आपको टेलीफोन घर पे मिलना भी एक लग्जरी माना जाता था। डॉक्टर, जर्नलिस्ट, ओके, या फिर फॉर एग्जाम्पल लाइक एक पॉलिटिशियन रहेगा तो मिल जाता था, बाकी लोगों को 8 साल का इंतजार करना पड़ता था। 1990s में भी चिल्ड्रन यू कुडंट सी समथिंग लाइक आईफोन। लेकिन फिर आपने देखा रहेगा 2001 के बाद में, 2003, 2004 के आसपास दे स्टार्टेड सेलिंग दोज कॉस्टली आईफोन्स। तो बच्चों उन्होंने मार्केट को स्टडी किया रहेगा। 1990s में बच्चों आपको 180 रुपीज का कैडबरी नहीं मिलता था मार्केट में, क्योंकि पीपल कुडंट इवन थिंक ऑफ बाइंग दैट दोज थिंग चिल्ड्रन। लेकिन आज वही चीजें मिलती है। इसका मतलब बाकी के जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं वो हमारे देश का नेशनल इनकम स्टडी करते। अच्छा, उन्होंने देखा कि इंडिया का नेशनल इनकम बढ़ रहा है, तो क्या करेंगे, नए नए महंगे प्रोडक्ट्स, लग्जरियस प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट्स में लॉन्च करना चालू करेंगे। ठीक है। अच्छा, जैसे उनको दिखता है कि हाँ इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रहा है, तो लोग फिर क्या करेंगे, इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स के डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, बैंक्स ओपन कर सकते हैं इंडिया में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। अच्छा, और ये सबके सब लोग ध्यान रखने का, एवरी डिसीजन इज बेसिकली टेकन विद द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग। क्लियर? अच्छा, पॉइंट नंबर 7 चिल्ड्रन इज टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे बच्चों हम लोग हमारे देश के अंदर लोगों के बीच में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हाउ डू वी कम टू नो दैट चिल्ड्रन? आई टोल्ड यू वेरी सिंपल फॉर्मूला, टेक द टोटल इनकम ऑफ योर कंट्री, डिवाइड इट विद द पॉपुलेशन एंड यू कम अक्रॉस व्हाट इज कॉल्ड एज द पर कैपिटा इनकम। वैसे बच्चों हम लोग क्या कर सकते हैं पता है यहाँ पे, कि देशों के बीच में इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वेल्थ कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वो भी तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि कभी आपने सुना है कि वी से अमेरिका अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल कंजम्पशन। उनके पास बच्चों कितना सारा वेल्थ है। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है कि वो नेशन का ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। एज अ कंपैरिजन चिल्ड्रन, हम लोग जो है हमारे पास बच्चों लोग इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कम है। अच्छा, then at the same time children we have got agencies like World Bank, international development agencies होते हैं, international monetary funds होते हैं। ठीक है, तो what they will try to do children, दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश है जो बैकवर्ड है, दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश है जहां पे बहुत ज्यादा पॉवर्टी होता है। सो वर्ल्ड बैंक, IMF ये ऐसे देशों को फंडिंग करते हैं बच्चों लोग। देन दे विल हैव सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इन प्लेस, और इससे बच्चों लोग ये जो दुनिया में इनइक्वालिटी है ना, कि सम कंट्रीज आर हाईली डेवलप्ड, सम कंट्रीज आर बैकवर्ड, हाँ तो बैकवर्ड कंट्रीज को इकोनॉमिक एड देके मदद करके बच्चों लोग उन देशों का डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाती है।
लेकिन ये कोशिश होने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि कौन से देश के पास कितना इनकम है. सो अगेन चिल्ड्रन वी कम अक्रॉस नेशनल इनकम अकाउंटिंग. क्लियर? एंड देन लास्टली चिल्ड्रन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड द पॉलिसीज. सेवेंथ वाला पॉइंट चिल्ड्रन इज टॉकिंग अबाउट द एंटायर वर्ल्ड. एट्थ वाला पॉइंट कुड बी स्पेसिफिकली अबाउट एनी पर्टिकुलर कंट्री. बच्चे लोग देश अपने नेशनल इनकम को स्टडी करेगा. अच्छा, फिर वो लोग क्या करते हैं, वो नेशनल इनकम का आइडिया आने के बाद हम लोग जो लॉन्ग टर्म या फिर मीडियम टर्म पॉलिसी जो प्लान्स बनाते हैं उसको हम लोग फॉर्मुलेट करना चालू कर सकते हैं. जैसे इंडिया ने जब 1947 में आजादी मिला था उसके बाद हमने स्टडी करके देखा तो अपना जीडीपी का ग्रोथ नहीं था, तो वी थॉट कि लाइक व्हाई नॉट प्लान फॉर डेवलपमेंट. एंड देन चिल्ड्रन वी केम अक्रॉस व्हाट आर कॉल्ड अ 5-year प्लान, पंचवार्षिक योजना. 1951 से 56 तो फर्स्ट 5-year प्लान था, 56 से 61 सेकेंड प्लान, 61 से 66 थर्ड प्लान, ऐसे. और ये सब प्लान्स का ऑब्वियसली टारगेट एक ही होगा, क्या कि हम लोग हमारे नेशनल इनकम को इंक्रीज करना चाहते हैं. नेशनल इनकम बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या बढ़ेगा बताओ? इफ देयर इज अ इंक्रीज इन नेशनल इनकम देयर विल बी एन ऑटोमेटिक इंक्रीज चिल्ड्रन इन द पर कैपिटा इनकम. ठीक है? और जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ता है तो वी कुड कम अक्रॉस पॉलिसीज लाइक फाइनेंशियल इंक्लूजन. ये सब आपने देखा रहेगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना, या फिर वी हैव गॉट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट विच इज मेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. ये सब पॉलिसीज बच्चे लोग ये नेशनल इनकम एनालिसिस के बाद में किए जाते हैं. सो ऑल दीज 8 पॉइंट्स चिल्ड्रन दे बेसिकली ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू व्हाई नेशनल इनकम एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर इकोनॉमिक स्टडीज. क्लियर? तो बाहर करने की जरूरत तो नहीं होती बच्चे लोग, अगर आप मेन पॉइंट्स बाहर करके बाकी सब अपने खुद के वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, इट्स वेल एंड गुड. क्लियर? Okay. In the coming lecture, children will be studying about different concepts of national income, GDP, GNP, NDP, NNP. ये हमने पहले सुना हुआ है, market price. Then we also got what are called as the factor cost. Very important और आपके future के लिए कभी बहुत काम आएगा. So, see you in the next lecture with the concepts of national income. Till then, bye. Take care. Stay safe.